поддерживают люди. Это правда. Мне кажется, я запомню это на очень долго. I think that Indian people are really open-minded and they're really kind. हमने इटली के प्ले बुलाए, रशिया के प्ले हैं, नेपाल के प्ले हैं, बांग्लादेश के प्लेज हैं. Какая торговля? Как вам тут? Да. Как тут? Oksana really likes shopping, so it's question for her. Shopaholic. Because of that I like it very much. अभी हम लोग हैं भारत रंग महोत्सव 2024 में, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा करवाया जाता है. तो अभी हमें यहाँ पर NSD के अंदर प्रेमिसेस के अंदर यहाँ पर कुछ हमारे रशियन साथी मिले जिन्होंने रशियन में अपना प्ले परफॉर्म किया था, और हमारे साथ NSD के गुंजन जी हैं. तो गुंजन, क्या था, इन लोगों ने क्या परफॉर्म किया था? इन्होंने जो नाटक परफॉर्म किया उसका नाम था कास्टिंग, और ये 16 फरवरी को यहाँ परफॉर्म किया गया था. और ये एक म्यूज़िकल नाटक था जिसमें एक्टर्स परफॉर्म करते हुए लाइव गाने भी गा रहे थे, और ये सारे परफॉर्मर्स लाइव बिना किसी एक्स्ट्रा एम्पलीफिकेशन के लाइव गाते हुए परफॉर्म कर रहे थे. मतलब आपका कहने का मतलब माइक वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं माइक थी? वगैरह लगी हुई थी, बट बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड नहीं था. वो उनका अपना गला ही इनफ था और उसके साथ वो परफॉर्म कर रहे थे. जैसे कि हम देखते हैं कि लाइव म्यूज़िकल्स, जैसे हम जानते हैं म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस होते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत चलन रहा है. तो जैसे संगीत नाटक होते थे महाराष्ट्र में आपका, उसी तरह से इनके परफॉर्मेंस थी. और इसको डायरेक्ट किया था रुला लिका जी ने, और वो इस नाटक के डायरेक्टर भी थे, वो परफॉर्म भी कर रही थी. और मुझे लगता है ज़्यादा नाटक के बारे में जब आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे. बिल्कुल. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर नेम? My name is Anna. Hello. Your name is Izana. Okay. So, can you just tell me, like, she's the director of the play. So, I'd like to know what was her perspective. Like, is it your first time performing in India, or it was like second or third time or something? Спрашивают, в первый раз ли мы выступаем в Индии и вообще как бы в первый раз ли мы выступаем в какой-то стране? Мы первый раз выступаем в Индии. Мы ездили по России с нашим спектаклем, а вот такие большие гастроли – это такой у нас первый трип. So it's for our first time doing our performance in another country. So we've never been in any country with this performance. So India is the first, and we're in India for the first time actually. We only did this performance in some different cities in Russia, but it's our first time. So, you're saying that this is not only the first time in India, it is first time ever in another country. You've been performing it in Russia only, okay. So, who was the protagonist of this play? So it's a different thing because everybody in this play is a protagonist. So we're talking about a casting, a thing that we all face every day. So it's something about people joining together because of a problem they have. So and they're solving it together. So everybody on the stage is a good person. Okay, so you have introduced me with your director. Can I just know who these two people are? Yeah. Okay, this is Asmik. She's my classmate, so she's a student too. She's playing a role in our casting. And this is Oksana Kostetskaya. She's our second master, so she's our main teacher. And she's tutoring us and acting. So. Can you just pass on my question to her? How was her experience performing in India? Okay, now second. Спрашивают from Asmik? Yeah? Yeah. Как тебе твое ощущение от выступления в Индии? Какие твои эмоции? Расскажи. Это очень незабываемый опыт перед таким зрителем выступать, когда ты ощущаешь из зала культуру страны, как поддерживают люди. Это правда. Мне кажется, я запомню это на очень долго. She's saying that it's unforgettable experience and she's really happy because she felt the energy of Indian people. They just were supporting and they were happy, they're clapping, they're laughing, and so it's an amazing thing. And she's saying that she will remember it for her whole life. That's very amazing. And as you're saying that you like the Indian audience as well. Have you met the Indian people all around, like apart from the audience? Yeah, and actually, I think that Indian people are really open-minded and they're really kind. So everybody helps us, everybody supports us. So we're feeling lots of love here, and it's amazing. Okay. Can you just pass on my question to her? Experience of like Indian markets and stalls and Bharat Rang Mahotsav overall. Индийская торговля? Как вам тут? Да. Как тут? Oksana really likes shopping, so it's question for her. Shopaholic. Because of that I like it very much. How was your experience in shopping around here in the Bharat Rang Mahotsav? Купили что-нибудь? Нет, пока еще не купила. Мы просто еще пока ничего не успели. Мы вот только выступали и приехали из Рамнагара. И собираемся завтра поехать на экскурсию. А также
посетить ваши магазины. She didn't have any chance to buy something yet because we had lots of work, but she really loves the color, the culture, so she's dreaming to go to mall and buy something tomorrow when we will have a free time, so she really likes it. Okay, how many people were there? Like, how many characters were there in your play? It was 14 people, yeah, so 14 different lives, 14 different things, 14 different dreams. So when we're talking about story of every person on stage. That might be so challenging, like just expressing 14 different stories on stage. What was the duration of your play? It was about I guess an hour and a half, I guess, yeah. But you know, singing and dancing is an international thing, and it helps us express a lot with a little time, so it's not really hard actually. Yeah, it felt so nice talking to you guys. And where are the other people from your team? What one more time? I'm just asking. Yeah, where are the other people? Have they left? here. Have they left? They're Okay, staying they are here also and they're here. shopping Can here. you just Jatin भाई एक बार दिखा सकते हैं आप सभी लोगों को? Yeah. These people were also there. ये लोग भी थे उनकी टीम में, उनकी टीम का हिस्सा. सो ये सभी लोग हैं जिन्होंने रशियन में अपना प्ले परफॉर्म किया भारत रंग महोत्सव में. तो हमारे साथ गुंजन है जिन्होंने हमें इनके साथ मुलाकात करवाई. और भारत रंग महोत्सव में और भी बहुत सारे और लोग हैं इनकी टीम में जो यहाँ पर आ चुके हैं. एक बार एक फ्रेम में हम आपको सभी लोगों से रूबरू करवा देते हैं. मैम प्लीज़ आप भी यहाँ पर जा सकती हैं. सो ये एक पूरा इनका वो था, समूह था जिसने भारत रंग महोत्सव में अपना रशियन लैंग्वेज में प्ले परफॉर्म किया. और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. यहाँ पर इंडिया में जो उनका एक्सपीरियंस था वो पहला था, और किसी भी दूसरी कंट्री में, मतलब रशिया के अलावा और भी किसी कंट्री में उन्होंने अब तक ये प्ले परफॉर्म नहीं किया था. इंडिया वॉज देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस और उनको काफ़ी मज़ा आया. तो हमारे साथ गुंजन जी हैं. गुंजन, आप कोई चीज़ इस चीज़ में जोड़ना चाहेंगे? आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब रशिया से लोगों को होस्ट करना, इनके साथ कॉन्टैक्ट करना और यहाँ पर सारी चीज़ें सुनिश्चित करना कि अच्छी तरह हो जाएं? जैसा कि हमारा इस बार भारत रंग महोत्सव का स्लोगन भी है, जो आपने देखा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, उसके पार्ट में देखते हुए हमें लगता है कि ये जैसे भारत रंग महोत्सव अब विश्व का ही, इंडिया का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े रंग महोत्सव में से एक माना जाने लगा है, या मैं कहूँगा सबसे बड़ा महोत्सव मानना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें आप देख रहे हैं हमने इटली के प्ले बुलाए, रशिया के प्ले हैं, नेपाल के प्ले हैं, बांग्लादेश के प्लेज़ हैं, और हम इसी तरह और भी अगले साल और भी इसी तरह और प्लेज़ बुलाते रहेंगे. इनके प्लेस को यहाँ ला करके ऑडियंस के बीच दिखाना, एक दूसरे कल्चर को प्रेजेंट करना, और क्या सिमिलैरिटीज़ है. हमारे स्टूडेंट्स जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वो जब इन्हें देखते हैं, और जैसा भी हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन हुआ, इंटरेक्टिव सेशन हुआ हमारे चौमुख ऑडिटोरियम में, वहाँ पर यही हुआ कि बिकॉज दे परफॉर्म म्यूज़िकल, वो म्यूज़िकल करते हैं, और हमारे स्टूडेंट भी कैसे परफॉर्म करते हैं, उन्होंने भी उनके लिए कुछ शिव वंदना गाई और नाटक के अलग अलग गाने गाए. हमारे निदेशक महोदय चित्रंजन त्रिपाठी सर ने उनके लिए अपने नाटक के कुछ गाने गाए, जिससे एक ऐसा माहौल निकल के आया कि कैसे आर्ट जो है ना, म्यूज़िक है, आर्ट है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है. एंड देन हम अगेन उसी बात पे आ जाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वाली बात जो हमारे महाउपनिषद में कही गई है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस तरह के परफॉर्मेंसेस ला के यहाँ कराना. और इसके साथ ही हम इंटरकल्चरल थिएटर की बात करते हैं कि हम जब रशिया के प्ले यहाँ ला रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारा 3rd ईयर जो बैच है वो इनके स्पेस में रशिया गया था, वो वहाँ पर एक नौटंकी परफॉर्म करके आए. सो एक अच्छा एक आदान प्रदान हो पा रहा है इन फेस्टिवल्स की वजह से, और हम चाहेंगे कि आगे और ऐसा होता रहे. आप एनएसडी के स्टूडेंट हैं. आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस ईयर में? मैं एलएमएनआई हूँ, मैं पास आउट हूँ. और मैं डिज़ाइन डायरेक्शन का पास आउट हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से. और मैं और मेरे कुछ साथी हम मिलकर अलाइड इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, जैसे आज का ये जो इवेंट हुआ, या जो डायरेक्टर्स मीट हो रही है, या जो सेमिनार्स हुए, उसे हम ऑर्गेनाइज़ कराने में हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो ये है भारत रंग महोत्सव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जाने वाला सालाना जश्न. आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं मेरे साथ, यानी शेख नाविद के साथ. कैमरा पर मेरे साथ हैं जतिन गोठवाल. और देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप. शुक्रिया.